Hello everyone. After completing my first lecture in the 11th science, 11th biology, that is a living world, now I move towards the second chapter. That name is Systematic of Living Organisms. The chapter number one, that is the living world, that is so simple chapter, and it take a very less period of time to complete that chapter. First, systematic of living organisms. This is a vast chapter. Will take 3 or 4 lectures to complete this. Okay, so we are going to study systematic of living organism. What is the meaning of systematic of living organism? So there is a diversity in the living organism. We have n number of living organisms which have a diversity. They are a different variety, their mode of nutrition, their mode of habitat, all you can see are differences. तो सिस्टमैटिक में यू आर गोइंग टू स्टडी कि इन डाइवर्सिटी में किस तरह से हर एक प्लांट को, हर एक एनिमल को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है एंड हाउ दे आर पर्टिकुलरली स्टडी, किस तरह से उनको क्लासीफाई करके उनको एक रैंक दिया गया है कि इसका लीडर कौन रहेगा। तो इस हिसाब से इस चैप्टर को टोटली क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल इस तरह से इसको बनाया गया है। there are different type of scientists जिन्होंने अपना contribution दिया है यहाँ पे for the classification of the plant and animal। किसी ने 2 kingdom system बनाया है, तो there are some scientists जिन्होंने 5 kingdom system of classification बनाया है। तो we are going to study this thing of living organisms in this chapter. Now introduction. There is a great variety, great diversity of living organisms around us. Since the time is immemorial, we humans have been exploiting the wealth for our benefit, own benefit. So, as you know, कि हमारे पास there are great diversity of organisms around us. हमारे आसपास में बहुत अलग अलग वैरायटी के प्लांट और एनिमल रहते हैं। बट वी आर द टाइम इमेमोरियल, हमारे पास उतना समय नहीं है कि उसके बारे में पता किया जाए उसका क्या यूजफुल है। जस्ट वी आर एक्सप्लोटिंग द वेल्थ अपने ओन बेनिफिट के लिए, अपने ओन बेनिफिट के लिए हम ये सारे वेल्थ को डे बाय डे खराब करते जा रहे हैं। ओके, during this process man tried to differentiate between the identify of the organism because हमको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं मालूम। If we don't know the knowledge about that plant or animal, तो we are just destroying the nature। हम उसको क्या कर रहे हैं, डे बाय डे डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश किया है कि हम प्रॉपरली हर एक प्लांट को आइडेंटिफाई करें कि क्या इम्पोर्टेंट है, उसको बताने की कोशिश करें, तो शायद उसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। Eventually, this evolved in a branch of biology known as systematic or classification। तो ये जो प्रोसेस है आइडेंटिफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको प्रॉपरली नेमिंग करना या क्लासिफाई करना, such type of study, such type of biological study is known as systematic or classification। The method of classification dates back to the ancient time when Indian, Greek and the Roman philosophers have contributed their mind to systematic science। तो ये आज का प्रोसेस नहीं है, इस एंशियंट टाइम मतलब प्रीवियसली लोगों ने सोचा कि प्लांट एनिमल जितने भी डाइवर्सिटी थे उसको प्रॉपर क्लासिफाई करना चाहिए। जिनमें कुछ इंडियन, कुछ ग्रीक, कुछ रोमन ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। Now you are going to study the definition of systematic classification. What is systematic? Systematic is the study of kind of diversity of organisms and their comparative and evolutionary relationship.
सिस्टमेटिक क्या है? तो सिस्टमेटिक एक ऐसे टाइप का स्टडी है जिसमें हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी कंपैरेटिव व्हाट इज सिमिलर बिटवीन दैट टू ऑर्गेनिज्म और उनका इवोल्यूशनरी पैटर्न क्या है, वो किससे इवॉल्व हुए हैं। तो वी आर स्टडी अबाउट द कंपैरेटिव पैटर्न, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है और एक कब कैसे इनका इवोल्यूशन हो गया, दैट वी आर स्टडी इन द सिस्टमैटिक। Now, what is taxonomy? Taxonomy means classification following certain rule and principle. तो taxonomy का मतलब होता है just organism को classify करना। तो classification of organism requires some principle and some rule. क्या है वो principle, क्या है वो rule, हम देखते हैं। Taxonomy come from two Greek words. Taxis means arrangement and nomos means law or rule. तो टेक्सोनॉमी जो है दैट इज अ ग्रीक वर्ड। अगर उसको दो पार्ट में सेपरेट किया जाए तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सिस? अरेंज करना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमस? दैट इज लॉ और रूल। तो अरेंजमेंट बाय द लॉ एंड बाय द रूल इज नोन एज द टेक्सोनॉमी। एक प्रॉपर रूल, एक प्रॉपर लॉ के हिसाब से organism को arrangement करना, that type of study is known as the taxonomy. The term taxonomy was coined by A.P.D. Candolle in 1773 to 1841. सबसे फर्स्ट टाइम taxonomy को कॉइन करने वाले जो पर्सन थे, that name of the scientist is A.P.D. Candolle, जिन्होंने इसका क्लासिफिकेशन जो है जो टर्म कॉइन किया था दैट इज 1778 में। ओके, नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म distinct category in according with a particular as well as the established plan। एक प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म में भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली एक पर्टिकुलर और वेल एस्टैब्लिश प्लान के हिसाब से जो अरेंजमेंट करते हैं, उसकी सिमिलरिटी, उसकी डिफरेंस, कितनी कैटेगरी एक दूसरे से मिलते हैं, उस हिसाब से एक प्रॉपरली प्लान के थ्रू जो अरेंजमेंट होता है कोई भी चीज का, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। जो कि हमने देखा है क्लासिफिकेशन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज आवर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जिस तरह बुक्स का क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बिकॉज हम लाइब्रेरी में जब विजिट करते, इफ इट इज अ स्कूल लाइब्रेरी, तो अगर उस स्कूल लाइब्रेरी में 1 से लेके 10 स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट होते हैं, तो सबका अलग अलग कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट में भी उनका अलग सब्जेक्ट का डोर रहता है। जैसे एक कबाड़ में लोग इंग्लिश के नोट रखते हैं, दूसरे में मैथ्स के। तो इस तरह से प्रॉपरली उसको अरेंजमेंट किया जाता है कि इसमें जम्बलिंग ना हो। तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई करना और फटक से ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसको प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से उसको क्लासीफाई किया जाए। The classification is based on similarity and dissimilarity among the organisms। तो जो क्लासिफिकेशन का जो मेन प्रिंसिपल है वो सिमिलरिटी, दो ऑर्गेनिज्म या बाकी ऑर्गेनिज्म में क्या सेम है उसके बेस में या क्या डिफरेंस है, ये दोनों के बेस में उसको क्लासिफाई करें। Now what is, there are a different method of classification। Okay, तो सबसे पहला मेथड जो है दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट। It is the classification that based on the few easily observable and non-evolutionary features such as habit, color, form, etc। तो ये एक तरह का इस तरह का क्लासिफिकेशन है जिसमें हम ऑब्जर्व किए गए ऑर्गेनिज्म जिसका इवोल्यूशनरी में कोई रिलेशन नहीं है, इससे इवॉल्व हुआ, जस्ट वी आर ऑब्जर्विंग कि ऐसा दिखता है, वो कहाँ पे रहता है, उसका हैबिट क्या है, उसका कलर क्या है, उस कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, often irrespective of the affinity relation with the other organism। तो हम इसके ऊपर ये ध्यान में देते हैं कि बाकी ऑर्गेनिज्म का और उस ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है।
का रिलेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा है, तो ये सब हम उतना फोकस नहीं करते। हमारा मेन फोकस जो होता है दैट इज उसका फीचर क्या है, उसका हैबिट क्या है, उसका कलर क्या है, वो कौन से फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, तो ये सब हम इस तरह से उसको क्लासिफिकेशन करते हैं एंड दैट was done by the Linnaeus system of classification. तो कार्ल लिनियस is the father of taxonomy. तो उन्होंने ये मेथड डेवलप किया था दैट इज नोन एज द artificial system of classification. Now, the next method of classification that is known as the natural system of classification. It is the classification which is based on the objectively significant rather than being selected for convenience like artificial system of classification. तो ये आर्टिफिशियल मेथड से नहीं किया जाता है। यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट उस ऑर्गेनिज्म की स्पेशलिटी क्या है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज सिलेक्टेड करके उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट जैसे फोर स्टेटमेंट, कोई भी गलत गलत स्टेटमेंट देके उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता। बाय द अपीयरेंस, बाय द हैबिट, बाय द कलर, इस तरह का क्लासिफिकेशन नेचुरल मेथड में तो नहीं होता। Now, phylogenetic classification. It is a classification based on the common evolutionary descent. Phylogenetic classification में evolution को देखकर उसका classification करते हैं and this was given by the Engler and Plantin. These are the two taxonomists. उन्होंने classification based on evolution, कैसे evolution हुआ है उस बेस पे उन्होंने classification किया, that is why they are known as the phylogenetic classification. In this system of classification, the term like taxa and category are often used. So, phylogenetic classification में इन्होंने कुछ term का use किया है that is known as taxa और category. taxa और category दो term use करके उन्होंने organism को classify किया है. Each category is referred as a unit of classification. तो जो भी category लिया है उसको उन्होंने unit माना है classification का. So category is considered as a unit of classification in the case of phylogenetics. In fact, it represents a rank and commonly termed as taxon. तो उसमें rank decide किया गया है कि कौन से organism को कौन से place पे रखा गया है और उसको commonly taxon के नाम से जाना जाता है. These are some example of phylogenetic जिसमें बैक्टीरिया, आर्चिया एंड यूकैरिया, इस तरह से इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोन दिया है। और ये इवोल्यूशन मतलब सबसे पहले इनका ऑर्गेनिज्म क्या था, फिर उसके बाद क्या इवोल्यूशन हुआ, फिर फाइनली आज क्या डेवलपमेंट है। तो दिस classification is based on the evolution pattern. So this was done by the Angler or Plantin. Now the three domains of life. What is the three domains of life? It is believed that the life is originated on Earth in a very simple form. तो थ्री डोमेन ऑफ लाइफ में हमें ये बताया गया है कि ये माना जाता है कि जो लाइफ है अर्थ पे, जिसका जो ओरिजिनेशन है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में हुआ था। बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद अर्ली लिविंग बीइंग गिव राइज टू मोर एंड मोर परफेक्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। तो जो बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ जो जनरेट हुआ था, सबसे पहला ओरिजिनेटेड हुआ था अर्थ पे, तो उसको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल करने के बाद धीरे धीरे लिविंग बीइंग का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि धीरे धीरे एक परफेक्ट फॉर्म में एक अपने आप लाइफ को वो मेंटेन कर रहा था। दिस स्ट्रगल एंड प्रोग्रेस इज इवोल्यूशन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स लाइफ फॉर्म। तो जो स्ट्रगल था, जो उसका प्रोग्रेस था, इवोल्यूशन था, वो इतना डाइवर्सिटी क्रिएट किया। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर द एडेप्टेशन। वो अपने आप को एडेप्ट करने के लिए उस वक्त बहुत ही स्ट्रगल करते थे, और स्ट्रगल किया तो वहाँ पे इवोल्यूशन हुआ, और इस वजह से देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द लाइफ फॉर्म। Carl Booth in 1990 proposed a three domain of the life to classify the life form. तो कार्ल बूथ 1990 में उन्होंने थ्री डोमेन ऑफ लाइफ बनाया, जिसमें उन्होंने लाइफ फॉर्म को क्लासिफाई किया है। तो व्हाट इज दैट? द थ्री डोमेन आर आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया।
So what is archaea, bacteria, and eukarya? We are going to study about that. Domain is the unit larger than kingdom in the system of classification. तो यहाँ पे domain जो होता है, domain को सबसे larger unit माना गया है kingdom से भी ऊपर as a system of classification. Bacteria and archaea both have prokaryotic cells, where the eukarya have a eukaryotic cell. बैक्टीरिया और आर्चिया ये थ्री डोमेन ऑफ लाइफ में जो बैक्टीरिया और आर्चिया है उनके पास जो सेल है दैट इज द प्रोकार्योटिक सेल. प्रोकार्योटिक सेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकार्योटिक सेल? जहाँ पे न्यूक्लियस आर नॉट वेल डिफाइंड and the nuclei are not surrounded by the cell membrane. तो उसका न्यूक्लियर का कोई लोकेशन फिक्स नहीं होता है और न्यूक्लियस के ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. तो दैट इज कंसीडर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोई प्रेजेंट नहीं होता है. So that is a prokaryotic cell. In the case of eukaryotic cell, it's a very modern cell. So उसमें you can see at the center the nucleus are present and that was surrounded by the nuclear membrane. ये difference है दोनों में. तो जो three domains of life है उसके अंदर बैक्टीरिया आर्चिया ये दो जो है दैट इज अ प्रोकार्योटिक. द सेल आर वेरी एंशिएंट सेल. और मॉडर्निटी में वी हैव द यूकार्या. यूकार्या दैट इज यूकार्योटिक सेल क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रेजेंट होते हैं. All these three domain have very important unique ribosomal RNA. तो इनके पास जितने भी डोमेन्स हैं ये थ्री डोमेन जिसमें हमने बैक्टीरिया आर्चिया और यूकार्या तीनों के बारे में स्टडी किया. इनके पास अपना राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं. Archaea are known for the survival at very extreme conditions like high temperature, salinity, acidic conditions. तो इनमें आर्चिया का ये स्पेशलिटी है कि वो कोई भी कंडीशन में बहुत एक्सट्रीमली कंडीशन खराब हो मतलब हाई टेम्परेचर सैलिनिटी ज़्यादा हो या एसिडिक कंडीशन हो उसमें भी आर्चिया अपने आप को सर्वाइव करता है. Bacteria through prokaryotic are different from archaea in the cell wall. तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं तो archaea is the organism which can survive at any condition. बहुत ही extreme condition में वो survive कर सकता है. मे बी टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो तो maximum high temperature में this archaea are able to survive. सैलिनिटी हो फिर भी सर्वाइव कर सकता है. एसिडिक कंडीशन हो फिर भी सर्वाइव करता है. तो ये बहुत ही हार्श कंडीशन में आर्चिया आर एबल टू सर्वाइव. इन द केस ऑफ बैक्टीरिया थ्रू दे आर प्रोकैरियोटिक दे आर डिफर फ्रॉम आर्चिया इन द सेल वॉल. तो क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है वो आर्चिया से डिफरेंट है तो उसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में देयर आर डिफरेंट बिटवीन द बैक्टीरिया एंड आर्चिया. Now the next classification method is known as the chemotaxonomy. What is the chemotaxonomy? This classification based on what is the chemical component present in the organism. So it is a method of biological classification based on the similar and difference in the structure of certain compound present among the organism has been classified. तो उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में कौन सा केमिकल कंपाउंड या कौन सा केमिकल प्रेजेंट है इस हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं. So that is known as the chemotaxonomy. In short, it is a classification based on the chemical constituent of the organism. For example, archaea cell wall is without peptoglycan and that of the prokarya is with the peptoglycan. तो जैसे मैंने बताया कि इसका जो क्लासिफिकेशन है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. तो आर्चिया जो है उसके अंदर एक शुगर प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स शुगर दैट नेम इज पेप्टिडोग्लाइकन. जबकि प्रोकैरिया में आर्चिया में पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है और प्रोकैरिया में ये प्रेजेंट होता है. तो डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट एंड द एब्सेंस ऑफ द केमिकल इस क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया जिसका नाम है chemotaxonomy. Among eukarya, fungi have chitinous cell wall, while plants have cellulose cell wall. तो अगर हम यूकर्या की बात करें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहीं पे हमको दिखाई दे कि
यूकैरियोटिक फंगस के जो सेल वॉल है दैट इज चाइटेनियस सेल वॉल, जबकि जो प्लांट के सेल वॉल है दैट इज नोन एज सेलुलोज, मतलब प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। फंगस का भी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ चिटिन। तो ये दोनों एक तरह के शुगर है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर, बट देयर इज अ डिफरेंस इन दी शुगर प्रेजेंट इन दी सेल वॉल। तो इसकी बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है दैट इज नोन एज द कीमोटैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे एक चीज रिमेंबर रखना है कि कीमोटैक्सोनॉमी इज नथिंग बट अ classification that based on the presence of chemicals present or absence of chemical constituent in the organism. Now, what is numerical taxonomy? Numerical taxonomy, numerical सुन के ऐसा लगता है number. तो this taxonomy is based on the number. Number के base पे जो classification करते हैं that is known as the numerical taxonomy. This system is based on the quantification of character developed in the algorithm for the classification. The basic unit aim of the taxonomy was to create a taxonomy using numerical algorithm like clustered rather than the subjective evaluation and the properties. तो यहाँ पे number of cells ये सब उसका काउंट करते हैं। यहाँ पे एल्गोरिदम उसका क्वांटिफिकेशन हाउ मच नंबर आर प्रेजेंट इसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज नोन एज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट proposed by the Sokal and the Sneak in 1963। तो नंबर के बेस पे क्लासिफिकेशन इज नोन एज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और इसको सबसे पहला जो डेवलप किया गया है that was the person name is Sokal and the Sneak that was done in 1963। Now what is cladogram? इट इज अ टिपिकल जो कि हमने देखा यूकारिया और बैक्टीरिया का जो वो स्ट्रक्चर था उसी को बोला जाता है क्लेडोग्राम। तो ये ब्रांचिंग पैटर्न है shown in the previous page जो कि थ्री डोमेन ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। उस टाइप के स्ट्रक्चर को क्लेडोग्राम कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द हाइपोथेटिकल रिलेशन डिनोटिंग अ कंपैरिजन among organism and their common ancestor। तो ये हमें ये बताता है कि कॉमन एंसेस्टर वो जो इवोल्यूशन हुआ उस ऑर्गेनिज्म का उनका एंसेस्टर कौन था और क्या रिलेशन था उनका, फिर उनके उनका इवोल्यूशन कैसा हो गया। तो ये सब वी गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू द क्लेडोग्राम। तो क्लेडोग्राम एंसेस्टर से लेके मॉडर्निटी तक उस ऑर्गेनिज्म के फेज में क्या रिलेशन है ये सारा हमें क्लेडोग्राम के थ्रू पता चलता है। Now we are going to study the next topic is known as the phylogeny. So what is phylogeny? It is the evolutionary relationship of the organism. Evolution कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह से इवॉल्व हुए, किससे इवॉल्व हुए, तो उनके बीच का रिलेशन क्या है दैट इज नोन एज द इवोल्यूशनरी फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी इज टोटली बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनके बीच का रिलेशन कैसा है। It is important tool in the classification as to take into account not merely the morphological structure status but also the relation of one organism with other organism in the life। तो ये भी एक important tool है for the organism का classification करना, जिसका morphological structure उतना important नहीं है बट important ये है कि उसका relation क्या है एक organism और दूसरे organism की life के साथ उसका important क्या है through the evolution, that is very important। तो ये एक important tool है for the classification of organism based on the evolution relationship। This system helps to understand the evolution and focuses on the similarity of their metabolic functioning। तो यहाँ पे evolution को अच्छे से समझना एंड उसके मेटाबॉलिक फंक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द मेटाबॉलिक फंक्शनिंग। मेटाबॉलिक फंक्शनिंग मतलब ब्रेकडाउन, तो क्या कंज्यूम करता है और उसका ब्रेकडाउन प्रोसेस कैसा होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। Woods predominant concept as well as the Whittaker phi system are very good example of phylogenetic relationship। तो वुड्स जो कि predominant concept बताया है और विटाकर जिन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का जिसमें कौन से ऑर्गेनिज्म से किसका इवोल्यूशन हुआ, उनके मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, बाकी के ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, उनका इवोल्यूशनरी पैटर्न कैसा है, उनका मेटाबॉलिक फंक्शनिंग कैसा होता है। तो ये सब इन्होंने अपने
किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन किया है। नाउ व्हाट इज डीएनए बारकोडिंग? डीएनए बारकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है। डीएनए बारकोडिंग इज a new method for the identification of special DNA sequence from tiny tissue sample of the organism under study. So DNA barcoding, this is a new technique for the identification of any species. कोई भी species को identification करने के लिए DNA barcoding का इस्तेमाल अब भी किया जा रहा है, बिकॉज ये नया टेक्निक है। इसमें डीएनए का सीक्वेंस कैसा है, डीएनए का अरेंजमेंट कैसा है, एक पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर स्टडी किया जाता है, उसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन होता है। It helps to study the newly identified species as well as understanding evolutionary relationship with the living organism. तो जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का डीएनए स्टडी करते हैं तो सबका सिमिलरिटी, सबका डिफरेंस, इससे हम पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना, उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए बारकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। The study of DNA barcoding includes the two basic steps. तो यहाँ पे जो DNA barcoding है वहाँ पे they require the two basic steps for the study. Collecting DNA barcode data for the known species. तो सबसे पहला हमें डीएनए बारकोड का डेटा, जो भी हमको स्पीसीज के बारे में मालूम है उसका पहला डेटा कलेक्ट करो। एंड सेकेंड, मैचिंग द बारकोड सीक्वेंस ऑफ अननोन सैंपल अगेंस्ट द बारकोड लाइब्रेरी फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो जिसका पता है पहला उसका कलेक्ट करो, एंड जो अननोन स्पीसीज है उसका डीएनए सीक्वेंस निकालो एंड ट्राई टू मैच, दोनों का मैच करने की कोशिश करो। जो मैचिंग होगा उसको उस कैटेगरी में डाल दो, जो नॉन मैचिंग है उसको अलग कैटेगरी में डाल दो। नहीं तो you can do the similarity and difference between the organisms, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस है। DNA barcoding has multiple applications, that is protection of endangered species. तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन भी है डीएनए बारकोडिंग का। क्या एप्लीकेशन ये है कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, दैट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, अभी तक वो खत्म हुए नहीं है बट खत्म होने के दौर पे हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डीएनए बारकोडिंग का बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। उसको प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर, आइडेंटिफाई ऑफ डिजीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट, ये सब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डीएनए बारकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाना, नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करके रखना, पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर, जो भी बैक्टीरिया, फंगस एंड पेस्ट के थ्रू एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होता है उसको प्रॉपर मैनेज करना, डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए बारकोडिंग का इम्पोर्टेंट है। और यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन प्लांट यूजिंग द डीएनए बारकोडिंग। नाउ व्हाट इज द टैक्सोनॉमी कैटेगरी? Classification is not a single step process but involves the hierarchy of the step in which each step represents a rank or category. तो क्लासिफिकेशन एक स्टेप में पॉसिबल नहीं होता है, इसका हायरार्ची ऑफ स्टेप रिक्वायरमेंट है जिसमें वी आर गोइंग टू गिव द रैंक और कैटेगरी टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज कि इसका रैंक क्या होना चाहिए, कि कौन से किंगडम में आना चाहिए। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement is called taxonomic category, and all the categories together is known as a taxonomy hierarchy. So कैटेगरी एक ओवरऑल पार्ट है टैक्सोनॉमी को अरेंजमेंट करने के लिए, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जितने भी कैटेगरी है उसको एक साथ करके वी आर स्टडी द टैक्सोनॉमी हायरार्की। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म को एक के बाद एक अरेंजमेंट किया जाए। तो उसमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहला किंगडम है, फिर डिवीजन है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, कैटेगरी, दिस आर द सीक्वेंस ऑफ हायरार्चिकल सीक्वेंस, जिसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। तो ये एक मेथड है, एक अरेंजमेंट है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को इसी पैटर्न से क्लासिफाई किया जाता है। नाउ टैक्सोनॉमी हायरार्ची, सबसे पहला जो टर्म है दैट इज नोन एज द टैक्सॉन। और टैक्सॉन इज अ taxonomic group of any rank in the classification। तो ये एक रैंक है जो कि क्लासिफिकेशन में हर एक ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है। इन द प्लांट किंगडम वन ऑफ द phonics such as angiosperm,
Then it is followed by the dicotyledon. So angiosperm is a kingdom. It is followed by the class dicotyledon, फिर order Polypetalae, then family Malvaceae, and represent the taxonomic group that is the taxon. तो ये एक सिस्टम है टैक्सोनॉमी हायरार्की का। एक टैक्सॉन एक यूनिट है, एक यूनिट टैक्सॉन एक ग्रुप है जो कोई भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक प्रॉपरली रैंक देता है। हमने एग्जांपल देखा दैट इज अ प्लांट। तो सबसे पहला उसको किंगडम प्लांटे में डालते, फिर उसका डिवीजन एंजियोस्पर्म है, फिर उसका क्लास डाइकोटिलेडॉन, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, तो इस तरह से उसको क्लासिफाई करते हैं। Now we have the category and two different type of taxon. तो इस तरह से इस दोनों प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। तो कैटेगरी में दो टैक्सोन है, एक हमने फर्स्ट ऑलवेज कम अंडर किंगडम। तो किंगडम में टैक्सोन है प्लांटे एंड वहाँ पे है एनिमिलिया। सबसे पहले हम लोग प्लांट का देखते हैं, किंगडम प्लांटे डिवीजन। In the case of plant, we are using the term division. अगर वही केस एनिमल में गए तो they are not using the division, they are using the phylum. तो टैक्सॉन प्लांट में किंगडम प्लांटे, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकॉट है, सब क्लास पॉलीपेटाली। ये डिपेंड करता है उसका कैरेक्टर ऑफ द फ्लावर। सीरीज थैलामिफ्लोरी, ऑर्डर मालवेस, family Malvaceae, genus Hibiscus, and species is Rosa sinensis. In the case of Animalia, you can say phylum kingdom Animalia, phylum Chordata, class Rapitile, Rapitilia series Dicida। इसके कोई सीरीज नहीं है, सब क्लास Dicida है, सीरीज is after here। Order Squamata, family Elpidia, genus Naja, and species is Naja. So this is called as the Naja Naja. Okay. So these are the method of classification। अब ये डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसके बारे में यू आर गोइंग टू स्टडी डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इसके बारे में पूरे एग्जाम्पल के साथ क्लासिफाई करने वाले हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है प्लांटे एंड एंजियोस्पर्म, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ चाइना रोज, दैट इज द मालवेसी। चाइना रोज जो शूट फ्लावर है उसको चाइना रोज कहते हैं, एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल दैट इज कोबरा। So next lecture में you are going to study about